Okay, so these are the some features bete which distinguish electromagnetic waves from the matter wave. We know the electromagnetic waves have electrical and magnetic field component, and matter waves will not be having. They travel in the vacuum. They are not traveling in the vacuum. They can isolate it from the source. They can't be isolated from the source. They travel with the velocity of light, and they depend the size पे जितना उसका mass होगा, they will travel with that much velocity only. They will not travel. Wavelength of this kind of the waves can be found by that formula, that is lambda is equal to c over frequency, and here it is lambda is equal to h over mv. So this is how to distinguish the electromagnetic wave from the matter wave. Now let us find out the relationship between kinetic energy and the lambda. You have done according to de Broglie's lambda is equal to h by mv. Now let us find the relationship between kinetic energy and wavelength. Kinetic energy and wavelength. Now you know what is kinetic energy. Kinetic energy is equal to, we know it is half mv square, isn't it? Kinetic energy is half mv square. If I will take this 2 here, then 2 into kinetic energy will be mv square. Okay, or I can write either way, mv square is equal to 2 kinetic energy. Okay bete, now let us multiply both the sides by m. Multiply both the sides by m. So what we will get here, it will become m square v square is equal to 2m into kinetic energy. ओके, अगर ये स्क्वायर हटा देंगे तो इधर जाके ये रूट हो जाएगा, तो एम वी इसका हमने स्क्वायर हटा दिया और इधर हमने रूट में कन्वर्ट कर दिया, तो इट विल बी 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट? ओके बेटे, सो वी हैव ऑलरेडी done that lambda is equal to h over mv. ओके बेटे, मगर mv हमने क्या फाइंड आउट किया फ्रॉम दिस इक्वेशन? दिस इज इक्वल टू दिस मच, mv इज इक्वल टू दिस मच, और यहाँ पे ये mv की वैल्यू वी विल पुट इन दिस इक्वेशन. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ mv इन इक्वेशन 2 हियर. तो व्हाट वी विल बी गेटिंग? We will getting lambda is equal to h over root 2 into m into kinetic energy. Okay, so this is the relationship between beta wavelength and kinetic energy, that is particle and wave character both. It has particle and wave character both. Now we will going towards Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. What does this principle suggest to us? This principle says it is not possible to determine simultaneously both the position and velocity of the microscopic particles. ठीक है? It is difficult to determine simultaneously both the position and momentum or velocity of a microscopic particle with a certain accuracy और with a certain या certainty. ठीक है बेटे, अब इसको ध्यान से समझो, इस इक्वेशन को आपको समझ आएगी. डेल्टा एक्स क्या है बेटे? देयर इज अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन.
एंड व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी, डेल्टा का मतलब देयर इज अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। ठीक है बेटा, मीन्स हम पूरी सर्टेनिटी से मोमेंटम और पोजीशन, मोमेंटम मीन्स कितनी वेलोसिटी से कोई चीज़ मूव कर रही है उसकी, वो भी नहीं निकाल सकते, और एट ए टाइम वो किस पोजीशन पे है वो भी नहीं निकाल सकते। ठीक, और साथ ही हमने ये कह दिया कि ये जो वैल्यू है अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, ये एक ग्रेटर देन या इक्वल, जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो यहाँ पे हम जनरली क्या लेते हैं, इक्वल टू। ठीक है बेटे, इट इज़ जनरली टेकन एज इक्वल टू, मतलब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी हमेशा, वी विल गेट अ कांस्टेंट वैल्यू। अब कांस्टेंट वैल्यू तो तभी आ सकती है अगर मैं बोलूँ कि अगर ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगी, ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगी। तो अगर इसकी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, ये क्या बता रही है बेटे, दिस इज़ अनसर्टेनिटी, दिस इज़ नॉट शोइंग द सर्टेनिटी। अगर इसकी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है मीन्स आप किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं फाउंड आउट कर सकते। मान लो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मैं बोलूँ कि डेल्टा एक्स ज़्यादा है, मतलब अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ज़्यादा है, तो आप बोलोगे जी मैम अगर डेल्टा एक्स ज़्यादा है तो डेल्टा पी कम होगी। क्यों पी कम होगी? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर एक बढ़ रही है तो एक कम हो रही है। अगर इसकी अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, मीन्स अगर इसको आप अनसर्टेन कह दो कि ये हमसे नहीं निकल रहा, तो उतनी ही सर्टेनिटी से आपको मोमेंटम निकलना शुरू हो जाएगा। मगर अगर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ती जाए तो पोजीशन की सर्टेनिटी बढ़ती जाएगी, मतलब आप पोजीशन बता सकते हो, मतलब एट ए टाइम आप दोनों सर्टेनिटी से नहीं बता सकते। अगर एक की अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है तो दूसरे की सर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है बेटे, क्योंकि डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी आर अनसर्टेनिटी। अगर एक चीज़ की ये बढ़ती जा रही है, मतलब मान लो 10 से 11, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 10, 11, 12, 13, 14, मीन्स आप पोजीशन की अनसर्टेनिटी बढ़ा रही हो कि आपको पोजीशन नहीं पता चल रही, आपको मोमेंटम पता चल रहा है मगर आप सर्टेनिटी से दोनों तो नहीं बता सकते। अगर आपको मोमेंटम पता चल रहा है तो आपको पोजीशन नहीं पता चलेगी। हम दोनों चीज़ सर्टेनिटी से नहीं बता सकते क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर एक बढ़ेगी, एक की सर्टेनिटी की तरफ जाएगी तो दूसरी अनसर्टेनिटी की तरफ जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? अब ये क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्या हो गया? अभी हाइजेनबर्ग में हमने ये बता दिया कि ये क्यों नहीं कर सकते। आप जनरली बेटे लैब में माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो तो नीचे आपकी एक लेंस लगा होता है जिससे आप लाइट फोकस करते हो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जिसको आप सेल्स को वगैरह को देखते हो। अब इलेक्ट्रॉन को फोकस, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हमें वहाँ पे भी तो लाइट लगानी पड़ेगी ना। तो लाइट की तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, जो फोटोन ऑफ लाइट आ रही है वो किस एनर्जी के साथ आ रही है। आप अगर कोई माइक्रोस्कोप लगा रहे हो बेटे, इसको देखोगे और रेडिएशन इसके ऊपर डालोगे तो इट इज़ हैविंग सम मच रेडिएशन और नॉट, इट इज़ हैविंग ना। तो जब ये स्ट्राइक करेगा, मान लो मैंने ज़बरदस्ती से इलेक्ट्रॉन को रोक लिया, ठीक है, अगर ये एक ऑर्बिट में घूम रहा है जैसे कि बोहर ने हमें बताया कि जी ये 2D में घूम रहा है, ये सर्कल में घूम रहा है। आपने कहा चलो देखते हैं कहाँ घूम रहा है। हम माइक्रोस्कोप हमने लगाया बेटे, और हमने माइक्रोस्कोप जब लगाया फॉर एग्जांपल तो हमने लाइट रेडिएशन दी, फोटोन दी, क्योंकि हमें अंधेरे पे तो नज़र आएगा नहीं, तो हमें कुछ फोटोन ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हमने दी, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट पे पड़ी, अब ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा था, जब इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, ये ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा है, इसकी पोजीशन उसी टाइम हिल जाएगी क्योंकि इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी है, इसमें कुछ वेवलेंथ है, इसमें कुछ एनर्जी है। जब आप कोई एनर्जी की लाइट किसी के ऊपर डालोगे तो उसकी एनर्जी के कारण वो छोटा सा इलेक्ट्रॉन तो अपनी पोजीशन से हिल जाएगा ना। तो आप उसकी पोजीशन कैसे डिटरमाइन करोगे? यू कांट डिटरमाइन। अगर मैंने उसको ज़बरदस्ती किसी तरीके से, मान लो मैंने रोक दिया, ठीक है, ज़बरदस्ती मैंने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया ऐसे,
तो मैं इसका क्या मोमेंटम फाइंड आउट कर सकती हूँ अगर इसको रोक ही लिया तो। अगर पहले तो मैंने रोका नहीं, चलो मैं कहती हूँ मैंने मोमेंटम भी फाइंड आउट करना कि कितनी स्पीड से घूम रहा है। तो अगर मैंने ज़बरदस्ती अब रोक लिया किसी तरीके से, फॉर आप सोचो, तो क्या आप टेल मी यू कैन फाइंड आउट द मोमेंटम इफ़ यू आर फाइंडिंग आउट द पोजीशन। आप दूसरी चीज़ सर्टेनिटी से नहीं फाइंड आउट कर सकते। ओके, अब व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लाइक जैसे हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है। लेट अस टेक एग्जांपल, जैसे हमने कल ली थी, वी हैव टेकन एन इलेक्ट्रॉन, वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ अ बॉल, ठीक है, एंड वी हैव फाइंड आउट द मोमेंटम। ठीक, तो हमने अनसर्टेन वो ड्यूअल करैक्टर में भी देखा कि इतनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ आ रही थी। अब लेट अस यूज दिस on the Heisenberg uncertainty principle। अब इलेक्ट्रॉन है बेटे, इलेक्ट्रॉन इट इज डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m। ओके, h अगर इसकी h की वैल्यू अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट 4 इंटू पाई की वैल्यू इट इज दिस। ओके बेटे, एंड आपके इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इट इज दिस मच। तो जो अनसर्टेनिटी आई है दिस इज दिस मच 10⁻⁻⁵। तो ये तो फिर हम निकाल सकते हैं। अगर बॉल की अनसर्टेनिटी निकालने चले, हम बॉल की अनसर्टेनिटी निकालने चलें तो हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 4 पाई की वैल्यू और मास कम से कम कितना ले लोगे, हाउ यू विल टेक 10⁻1 कर लिया था, आज भी 0.1 ले लेते हैं, 10⁻⁻1। तो हमारा कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है, -34। So this uncertainty has very 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 small value which can be neglected। Okay, and this uncertainty doesn't have certainly a small value which can't be neglected। Getting my point? So it help in telling us कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम पूरी सर्टेनिटी से नहीं निकाल सकते। तो बोहर को हम फेल करें बेटे, यहाँ पे बोहर कहता है जी इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में घूम रहा है। बोहर said to us that electron is revolving around the nucleus in a circle। ठीक है, अगर एक सर्कल में घूम रहा है तो मैं इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर लूँगी। अगर सर्कुलर ऑर्बिटल में घूम रहा है तो पोजीशन वेलोसिटी तो एक्यूरेटली फाउंड आउट कर देंगे। मगर अनसर्टेनिटी ने क्या कहा, अनसर्टेनिटी ने हमें कहा कि हम पोजीशन और मोमेंटम पूरी एक्यूरेसी से फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। तो अब ये कैसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में घूम रहा है, एक 2D पाथ में घूम रहा है। हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहीं भी हो सकता है एट ए टाइम। मैंने आपको एक बॉल दे दी, बॉल में एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल डाल के दे दिया। एक मान लो मैंने आई हैव गिवन यू फुटबॉल एंड आई हैव गिवन यू अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इन दैट। अब मैं आपको बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन निकाल लो, आप तो निकाल ही नहीं पाओगे, घूम ही जा रहे हैं। तो आप कहोगे मैम इस बॉल में कहीं भी हो सकता है, हम नहीं बता सकते कहाँ है, मगर इस बॉल में कहीं भी हो सकता है। इस बॉल में क्योंकि डाल के दिया है आपने, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन दिस बॉल। इस बॉल के अंदर अंदर हमें कहीं भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें इसी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन छोटा सा है, मूव कर रहा है, इसकी पोजीशन भी आप, तो आप कहोगे कि इस जगह पे, इस 3D में, 3D है ना बॉल, तो 3D में हमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम मिल सकता है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए जब ये दो चीज़ें आई, एक डुअल नेचर आई और एक अनसर्टेनिटी आई, अब आपका जो इम्पोर्टेंट फॉर द क्लास +1 क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आ गया बेटे, एंड इट इज केम फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. Quantum physics have, it is very much in detail in the higher standards. It is another branch of the science. Okay, quantum mechanical model of atom. Okay, इस मॉडल ने दोनों चीज़ें कंसीडर करी. क्या क्या? दिस मॉडल हैज़ कंसीडर्ड डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक इट हैज़ वेव एंड हैज़ पार्टिकल नेचर, एंड ऑल्सो द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, मैथमेटिकली जो बिहेवियर था इस मॉडल का, इट इज़ गिवन बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. This is Schrödinger wave equation. What is this equation? This is डबल डेरिवेटिव ऑफ साई. देखो इसकी कितनी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, देखो. देन आई विल टेल यू. दिस इज द इक्वेशन and here it is continued बेटे. E माइनस वी साई इसके साथ ही है बिल्कुल, ये इज इक्वल टू 0. ये एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है बेटे. इट इज गिवन बाय श्रोडिंगर इटसेल्फ. इस इक्वेशन में m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, h वी नो इट इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, E is a total energy. E is a total energy. V is potential energy, and psi here, psi and psi, it is amplitude of the wave. जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, this is a amplitude of the wave. And d square psi over dx square or d square psi over dy square, d square psi over dz square represent the double differentiation with respect to the axis. Like if I am writing d square d y square, it is a double differentiation. With respect to y axis. ठीक है बेटे. अब जब साइंटिस्ट ने, अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई थी हाइड्रोजन के एटम के लिए, ये बाकी एटम्स के लिए नहीं गिवन थी. ठीक है, पहले ये बात समझो. मगर कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशन करके हमने बाकी एटम्स के लिए भी हमारे जो भी क्वांटम नंबर्स थे हमने उनके लिए भी निकाले, और यू आर गिवन विद 3 क्वांटम नंबर. जब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें सॉल्यूशन जो ऑब्टेन्ड हुए, जो सॉल्यूशन, ठीक है, इसके ऑब्टेन्ड है उसे कहते हैं वेव फंक्शन. ठीक है, वेव फंक्शन, जो सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करके जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हुए उनको कहते हैं बेटे वेव फंक्शन. दे आर नोन एज वेव फंक्शन. अब जितने भी वेव फंक्शन मिले हमें वो सारे परमिटेड नहीं थे. जिनकी वैल्यू परमिटेड थी, द वैल्यू विच वर परमिटेड, ठीक है, दे आर कोरस्पॉन्ड्स टू सर्टेन ऑर्बिट्स. उनकी सर्टेन एनर्जी थी, उनको हमने कहा ऑर्बिटल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. हमने यहाँ पे डी साई लिखा. ठीक है बेटे, डी स्क्वेयर साई लिखा कि नहीं लिखा. अब व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस साई? वेरी इंपॉर्टेंट. What is physical significance of psi? आपको पता है psi का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. psi क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव.
एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो एम्पलीट्यूड हम कर चुके हैं। एम्पलीट्यूड कैन बी दिस 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 दिस, मीन्स प्लस, अगर साई की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, अगर साई की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, मान लो +2 आ गई, तब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन है। साई में क्या बताता है, मतलब अगर हम साई इस जगह पे इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इस जगह पे नहीं है, इस जगह पे है, इस जगह पे नहीं है। अगर साई की वैल्यू पॉजिटिव में है तब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन है, ये बोल लेंगे कोई। अगर साई की वैल्यू नेगेटिव में है, अगर +2 है तो हम कहेंगे +2 मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की पॉसिबिलिटी। इसकी बेटे नेगेटिव में, इसका मतलब हम ये कहेंगे अब इसके में इलेक्ट्रॉन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं साई का तो जस्ट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, जिसका सिग्निफिकेंस है दैट इज साई स्क्वेयर, दैट इज साई स्क्वेयर। साई स्क्वेयर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक। इट टेल्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी of finding the electron, the probability of finding the electron। देखो साई की वैल्यू चाहे नेगेटिव में हो बेटे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। गेटिंग माई पॉइंट। तो साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है बेटे, साई स्क्वायर का। वो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बताएगा, क्योंकि साई अकेली तो नेगेटिव में भी हो सकती है, ट्रफ में जाएगी तो नेगेटिव में भी हो सकती है। तो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो नहीं है, सिर्फ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव बता रही है। मगर जब इसका स्क्वायर किया गया तभी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आई, ठीक है। और जहाँ पे हमें जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलता है उससे इन्होंने कहा दिस इज नोन एज ऑर्बिटल, एंड ऑर्बिटल इज नॉट 2D एज ऑर्बिट ऑफ बोहर, इट इज़ लाइक अ फुटबॉल दैट इज 3D। तभी तो उसके 3 कोऑर्डिनेट लिखे हमने, लिखे डी साई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर। यू सी द इक्वेशन। तो x भी कोऑर्डिनेट है, y भी कोऑर्डिनेट है और z भी। 3 कोऑर्डिनेट जब 3D मॉडल की बात करते हो तभी बन सकते हैं। अगर 2D होता तो x और y 2 एक्सिस होती बेटे। अगर आपकी 3 एक्सिस पे ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके अब आपको डिफरेंट जो इसके वेव फंक्शन आए हैं तो डिफरेंट ऑर्बिटल परमिटेड हुए हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अब इनको सॉल्व करके बेटे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें 3 क्वांटम नंबर्स, पहले 3 क्वांटम नंबर्स आए, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पर्टिकुलरली हमें बताते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रॉन हमारे एटम में प्रेजेंट है। वो 3 क्वांटम नंबर कौन कौन से थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास 3 क्वांटम नंबर आए, एंड 4th क्वांटम नंबर क्योंकि मैग्नेटिक, कई मैग्नेट की तरह बिहेव करते थे तो हमने इंट्रोड्यूस करवाया गया वो बाद में, जिसे हमने कहा स्पिन क्वांटम नंबर। अब मैं इसको डिटेल में बाद में लूँगी, जस्ट आई विल टेल यू इन द ब्रीफ टुडे कि ये चारों क्वांटम नंबर हमें बताते क्या हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेट मी राइट n, इट इज डोनेटेड बाय n बेटे। देन एजीम्यूथल, इट इज डोनेटेड बाय l। देन मैग्नेटिक, इट इज डोनेटेड बाय m, एंड देन स्पिन, इट इज डोनेटेड बाय s, ठीक है। ये 4 क्या है, क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर्स हमें लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन 3D स्पेस में बताते हैं। इन एन 3D स्पेस में हमें ये पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं। गेटिंग माई। में अब इसको और इजी वे से समझो कि आपने किसी की बंदे के घर पे पहुंचना हो तो आप इंडिया में पहले तो उसकी स्टेट पता करोगे, किस स्टेट में रहता है, ठीक है। फिर उसकी सिटी पता करोगे, फिर उसकी स्ट्रीट पता करोगे,
और फिर उसका घर पता करोगे। अब डिटेलिंग वी विल डू टुमारो। तो पहले आप इसको अपने दिमाग में बैठाओ। तो 4 क्वांटम नंबर, मान लो एक बंदे की घर पता करना है आपने कि वो कहाँ पे रहता है। तो मैंने कहा भी इस बंदे का मुझे पता करके दिखाओ इंडिया में, तो क्या होंगे, इस स्टेट में, इस सिटी में, इस स्ट्रीट में, और इसका घर ये है। अब आप मुझे ये बताओ, स्टेट तो बहुत सारे बंदों की एक जैसी हो सकती है ना, 1 2 3 4 5, सिटी भी ऐसी ही हो सकती है, स्ट्रीट भी हो सकती है, तो घर तो उसी बंदे का ही, एक बंदे का ही होगा, है ना। गेटिंग माई पॉइंट। तो स्टेट, अब जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें मेन एनर्जी लेवल बताता है। वी विल डू शेल, इसे कहेंगे हम शेल। अब शेल के अंदर आती है बेटे सब शेल, जो आपकी फाइन लाइन आई थी स्पेक्ट्रा में। हमने कहा था कि बोर ने मेन लाइन के बारे में बात कर ली, जो फाइन लाइन आई है उनके बारे में बात नहीं करी, क्योंकि बोर ने हमें सब शेल का कंसेप्ट ही नहीं दिया था कि इस एक एनर्जी लेवल के अंदर भी एनर्जी लेवल है एक और। फिर सब शेल के अंदर भी एक एनर्जी लेवल है जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल, और जिसके कारण ये जो लाइन आई थी वो स्टार्क या जीमन इफेक्ट के कारण स्प्लिट हुई थी। और ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा होता है और एक फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है। तो हमें किसी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना हो तो पहले उसकी स्टेट में गए, फिर उसकी सिटी के अंदर घुसे, फिर उसकी स्ट्रीट में गए, और फिर उसके घर तक पहुंचे हम। ठीक है, तो पहले उसकी शेल देखी, उसके अंदर सब शेल थी, उसके अंदर सब शेल के कुछ ऑर्बिटल्स थे। ये जो शेल्स थी उन्होंने अपने आप को किसी एक्सिस की तरफ ओरिएंट किया हुआ था, और फिर ऑर्बिटल आए, फिर उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आए, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। एक जा रहा था क्लॉकवाइज की तरफ, ऐसे ऐसे घूम रहा था, और एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे। तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हाउ, व्हाट आर दीज क्वांटम नंबर, what does it tells us, we will do in detail tomorrow, and I have given you a small intro to it कि आपको समझ आए कि ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताते हैं। बोहर सिर्फ इसकी बारे में बात करके गया, हमें शेल की, उसने ना हमें सब शेल की बात करी, ना हमें ऑर्बिटल की बात करी। उसने ये कहा कि जी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, अरे